Hello everyone. A very good afternoon to everyone in this today's session. Right? So today we are going to talk about a new short story of your a new short story book of your class 11th and 12th. Okay? Within that, our first story. Okay? So as you all know that I'm taking for ICSE and ISC board. Okay, so today we're going to talk about ISC board class 11th and 12th. A new book has been introduced in your class 11th of English short story, that is Prism. Right? What is the name of your book? Prism. Okay, I think that many of you have the same book, okay, which is published by the council, okay, that is Prism. Within Prism, we're going to see the short story, okay, the short story number 1, that is A Living God by Lafcadio Hearn. Okay, so as we all know that this book has been introduced for your class 11th and 12th. Okay, within this book, this contain all short stories. Okay, this contain approximately 20 short stories. Okay, itself 20 short stories. Okay, in 10th, you were having 10 poem and 10 short stories, right, within one book. But in 11th and 12th, you would be having the two separate books, the one for the poem itself and the next would be for the short story. Right, so within the short story book Prism, we're going to see the first story, that is A Living God. Okay, A Living God by Lafcadio Hearn. Okay, such an important and interesting poem. Okay, such an interesting short story. Okay, which shows the culture, the tradition of Japan, which show the culture and tradition of Japanese people, how they used to live, what are the problems faced by those peoples is also shown in this story, right? What are the problems faced by the Japanese people? Since we all know that Japan is quite famous for the natural calamities, right? Natural disasters, like especially we talk about the earthquakes, okay, and tsunamis, right? It is quite famous for tsunamis and earthquakes. Okay, we are familiar with this. So in this short story, not poem, why am I again saying poem? In this short story, there would be a national disaster. Okay, there would be a national disaster, and the natural disaster would be what? First, the earthquake, and through the shaking of the due to the shaking of the plates of the earth, the tsunami will occur. The high tidal waves will come, they will ooze out and they'll come out. Okay, so let's see. Before that, I would like to tell you about Lafcadio Hearn, obviously the poet of the story, of the writer of the story. Okay, so who is Lafcadio Hearn? His full name was Patrick Lafcadio Hearn. He was also known by his Japanese name, since I have told you, it is a Japanese story and written by a Japanese author, right? So his Japanese name was Koizumi Yakumo, right? What was his Japanese name? Koizumi Yakumo. He was born on the Greek island of Lefkas, right? He was born on Lefkas, which is a Greek island. Now, I was saying that he was a Japanese fellow. He was a Japanese writer. But here it is saying he took birth in Greek because his mother was of different their parents are of different nationalities. Okay, their parents were of different nationalities. Actually, what happened? This fellow, let me tell you, he was born on the Greek island of Lefkas. He was an international writer, translator, and journalist, proficient in English. He was good in English. Okay, since he was a doctor, he was from Japan. Okay, then also he was good in English. Why? Because his mother was an English woman. Okay, she was from English
country. Okay, actually, and next, Greek and Japanese language too. Okay, her mother was from other country, and his mother was from other country. His father was from different country. Okay, and due to this, he knows several types of languages, right? Like of Greek, Japanese, and English. He was well versed with these three languages, right? His father was an Irish fellow who used to serve in an he was an officer, right? Who was from Iris, and his mother was a Greek woman, okay, who is from Greek, and this is the reason why he know English, Greek, and Japanese languages, right? I hope now you know the reason, right? Let's see. This fellow is the Patrick Hearn, the Lafcadio Hearn. Okay, the Patrick Lafcadio Hearn. Okay, his lifestyle was from 18, though it is not history, but then also I would like to tell you. Okay, 1852, 19, not 4 or 5, something like this. Okay, so in history you might see some knowledge about him. You can. Okay, so he is like Patrick Hearn. Okay, I hope you got an idea by seeing his face. Okay, looking little shy, but yet he was an intelligent person, a very renowned personality like Rabindranath Tagore. Okay, obviously. Now let's see, as I told you, what is the name of your story, short story? A Living God. Let's open the story, right? Let's open the name of the story, A Living God. What do you mean by a living God? If we do not see a God, we never saw any God. So how we can say a living God? Means why a God living? Okay, is just something who makes a God living, an Almighty living? Okay, actually, in Japan, there's one fellow. Okay, there's one fellow in Japan who is very much very kind-hearted person. Who was very kind-hearted person. Okay, who was very innocent too. Okay, his name was Hamaguchi Gohei. Remember the name. What was his name? Hamaguchi Gohei. We'll see Hamaguchi only. Okay, so Hamaguchi, this fellow on your screen, this is Hamaguchi Gohei. Now, right now, let us show you this portrait. Okay, this would be. Right now, I have told you that he is a very kind-hearted person, but by his applying the fire on the field, why is doing this? Good person never did it, right? Good person never done this type of work, right? So why he is doing this? Because he wants. He is having any reason. He is having some reason. Okay. And the reason is for the welfare of his country, for the welfare of his villagers. Okay. He has burned his own field. He has burned his own field for the welfare of the country. Right now, I have told you that these guys are from Japan. And Japan is famous for tsunamis and all these natural disasters, right? So there, at the time, a tsunami took place, but it is about to come. Tsunami is about to come. Okay, and this fellow, Hamaguchi Gohei, he sensed it that the tidal waves, they are little different. They are little mischievous today. Why it is so? Means they were coming forward, and when they used to go back, okay, they were not coming for half an hour. Okay, then he realized that something is going to happen. Okay, the words were crying, they were crippling, the words were creeping. Okay, the words were flying, and the atmosphere became silent. Why? This is the sense of some
natural disaster. We have all seen it in movies and all those things, right? So this is the sign of natural disaster, that something is going to happen. So he has sensed through these signs. Since at the time the satellites and all the things were not developed, but not so much advanced. Right now we're having a lot of gadgets through which we can sense. Okay, through which we can sense. Like for earthquake, we are having this 70 scope or something, I'm forgetting, but something is there, scope is there, 70 scope or something. If you know, please do tell me in the comment section. Okay, so at the time these gadgets were not there. Okay, so that we can that's why we are unable to, that's why those people are unable to find out that there something going to happen wrong. Right. So when this Hamaguchi Gohai saw that something is very mischievous in today's day. Okay, the tidal waves, the waves of the seas are going back and they're not coming. How it is possible? Why they were not coming? This is a sign of tsunami. Why it is a sign of tsunami? Because when they were going back, they were not coming forward. They were just collecting themselves. The tsunami waves, the waves of the seas were collecting. Okay, they were collecting themselves to make a huge and immense, enormous wave, to convert itself in an enormous wave. They were converting themselves, right? That he has sensed that there's something going to happen very wrong. Before it happened, let me tell our villagers about it. Let me inform our villagers about this natural disaster. But since those villagers were quite far apart, okay, because he used to live in the temple. His farm was near to the temple, and the villagers were quite far apart from him. Okay, they used to live near the shore area of the sea. The villagers used to live near the shore area of the seas, and Hamaguchi Gohai was quite far from that. He used to live near the temple. Okay, he used to live near the temple, and he was having his field of rice. Right. So, in order to inform those people who are living near the shore area, near the seashore area, to inform those fellow, what he done, you can't wear it, right? You can't hear it. Okay, he has burnt all the field of rice. He has burnt all the field of rice. Okay, and when his grandson saw this, then he saw, Oji-san, what you are doing? Oji-san is the Japanese word used, which means grandpa or grandfather. Okay, they are quite since this story is of Japanese, so there would be some Japanese word. Okay, so then he uttered that, Oji-san, what you are doing? Why you burning your field? Okay, he was not having any single answer to giving, so he should quench the thirst of his grandson. He was not having a single answer. He was not uttered a single word. Okay. Now when the flame, the blaze of the fire seen by the people living near the shore area, then they rushed there. Okay, they rushed near the farm of this fellow. What was the name of this fellow? Gohai, Hamaguchi Gohai. Okay. Now, since he was very kind-hearted person, I have told you. Okay, so everyone loves him. No one wants that his field should ruin. His field ruin very badly. No one wants this because he was very good person. We know the person who is very good, everyone behaves very nicely to them. Right? So same happens to him. Everyone rushed from that shore area. Okay, and bringing the full bucket of water and every extinguisher stuff and every stuff they were bringing and just pouring towards the field of Hamaguchi. When the fellow of the villagers asked to Hamaguchi how this happened,
Then the grandson, then the grandson of Hamaguchi said that my grandfather got mad and he has burned his own field by himself. Okay, when everyone listened this by his mouth, they got stunned, because obviously no one can burn his own hard work by himself. But why he did this? Why he done this? Sorry, why Hamaguchi done this? In order to inform those fellow, in order to inform those guys, those fellow of the villagers. How many fellows were there? Approximately 30,000 human beings. So he has saved those 30,000 human beings' life by sacrificing his field. Okay, so this type of heart was near to Hamaguchi. Okay, such a great personality. Okay, he not saw his benefit, his profit and loss, his everything. He has just lit a fire on the field and burned all the field, just smeared all the field. Okay, and saved the 30,000 lives by burning. Okay, how he saved? Because since they were the fellow of the villagers were too far from Hamaguchi. The time was very less. Tsunami can occur any time. Okay, tsunami can occur any time. The time is very less. Right, the time was very less. So in order to call all the fellow very rapidly, okay, he has done this just to call the villagers. Just to call. I'm repeating my word. Just to call the villagers. He has burned his all the hard work. He has burned his all the rice field. Okay, just to save the life of 30,000 human beings. Okay, since Hamaguchi used to live on the temple, and the temple was on the hill area side. Okay, and the hill area was obviously it was very high. Okay, it was on the altitude from the shore area. Okay, so tsunami can't reach there. Tsunami cannot reach there, and through this work, he has saved 30,000 lives of children, of infants, of pregnant women, of youth, of an adult or an old persons as well. Means from every age range, he has saved life. Such a great personality is shown in this story of Hamaguchi. I hope now this was not a summary. This was all the story I have told you. All the story I have told you about Hamaguchi. Okay, there are some Japanese words like Oji-shan, Choza. These all are the words used for grandfather or for the grandson. Okay, Oji-shan means grandfather, Choza means grandson, and there are many more words used in Japanese language here. So, since this story is very lengthy, it is quite lengthy. So obviously it is not possible to complete all the story. But I have told you main postulates. If you read the story. If you read the story, you will understand. And still, if you are unable to understand, don't worry. I'm telling you by this. Okay. So let's get started solving the. Let's get started start the story of Hamaguchi. How he sacrificed his life, his all the field, his all the hard work of 2-3 years, right, in just fraction of time, and become a living god. Now after that, what they did, actually I have some days left now. Okay, after that, what they did, what the villagers did, they formed an idol of Hamaguchi in the temple, okay, and start worshiping him. And that's why here the name of the short story is it is proved, okay, it is proved a living God. Okay, why there is a living God? Because there is a God.
There's a God in a disguised form, in a form of a human being. Since he's living, he's an old man, obviously he's living, right? So, and people starting worshiping of this fellow, of this Hamaguchi Gohai, okay? And yep, here's this summary is done now. Okay, let's start the summary now. Let's start the lengthy summary. Okay, here I told you a very small summary to create an interest. Okay, why told you this summary? To create an interest in yourself, as well as to make you aware about the story, about the short story. Okay, Hamagu, about the living God, how a person become a living God. This is proved by the story. Okay, proved by Lafcadio Hearn. Right, so let's start this story. So, Hearns, a living God, tells the story of a tsunami invasion on a village along the Japanese coast. I have told you that this story is of a national calamity, of natural disaster named tsunami, which is on the Japanese coast. Obviously, this is written by a Japanese writer, Lafcadio. Okay, so this is the story of Japan near a coastal area, near a coastline in which a sea, there used to happen the tsunamis and like Hercules and every natural disasters used to come within a month or year, right? So, in a living God, a tsunami comes towards the way of a small village of farmers. Okay, tsunami जो है वो कहाँ आती है? एक विलेज में आती है जहाँ पे फार्मर्स या पीजेंट्स जैसे छोटे लोग रहते थे, मतलब हु आर नॉट वेरी रिच, राइट, लाइक ऑफ फार्मर्स, पीजेंट्स. ओके, द पीपल यूज्ड टू लिव देयर. ओके, a fellow farmer, Hamaguchi Gohai, okay, a fellow farmer, Hamaguchi Gohai, does the liberty of saving his people by setting his hard-grown crops on fire so they can see the smoke and come back to the same safe place. Okay, क्या किया Hamaguchi ने? जैसे कि मैंने बताया था, अपनी क्रॉप्स का सैक्रिफिकेशन किया, अपनी क्रॉप्स को सैक्रिफाई कर दिया, अपनी इतनी मेहनत. देखो, एक जो क्रॉप होती है वो कैसे होती है? एक दो दिन की क्रॉप नहीं होती है, वो कई साल, कई महीने लग जाते हैं उस क्रॉप को बड़ा होने में, उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में कई महीने लग जाते हैं. तो हामागुची ने उस टाइम पे सिर्फ किसे देखा? अपनी मेहनत को नहीं देखा. अपनी मेहनत को उन्होंने फेंक दिया, लात मार दी अपनी मेहनत को, और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा 30,000 पीपल की, 30,000 पर्सन्स की लाइफ को देखा, और उन्होंने अपने ही खेत में खुद से आग लगा के अपनी जितनी भी मेहनत थी, जितनी भी क्रॉप्स करी थी, उन्होंने इतने प्यार से वो सब जला दी, राइट. सिर्फ किस लिए? 30,000 ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को बचाने के लिए. ओके, जिससे कि जब वो आग लगाएं और आग से जो धुआं जो है वो ऊपर जाए आसमान में, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं लोग, वो उस चीज़ को देख पाएँ और इधर भागे भागे दौड़ कर आए. क्योंकि हामागुची वॉज अ वेरी नॉबल पर्सन, वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन थे हामागुची. इसलिए कोई भी उनका बुरा नहीं चाहता था, क्योंकि वो सबके साथ अच्छा करते थे, राइट. वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट के साथ साथ आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा नम्र थे. ओके, तो कोई भी ऐसे इंसान की लाइक तबाही होती तो बिल्कुल नहीं दे सकता. ये तो ऑब्वियसली, ये तो हम सबको पता है. कोई भी अगर अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा हो रहा तो हम सब जाएंगे कि नहीं यार वो तो बहुत अच्छा है, उसके साथ ये नहीं हो सकता, है ना. अच्छे इंसान के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो उस पूरा, मतलब पूरा संसार, इवन गॉड तक उसके साथ रहते हैं, राइट. तो जब विलेजर्स ने देखा कि हामागुची के खेत में आग लग गई है, ओके, हामागुची के खेत में आग लग गई है, तो सब जाते हैं पानी की बाल्टियां लेके, और कुछ भी जो भी आग को बुझा सकता है, कुछ कंबल लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, सब जाते हैं, सब भागते हुए जाते हैं. पर ये हामागुची की एक ट्रिक थी. ओके, उनका एक आइडिया था जिससे कि जो लोग हैं
एक बच्चे से लेके बूढ़े तक के जो लोग हैं, वुमेन से लेके गर्ल्स से लेके प्रेग्नेंट वुमेन तक, सब कोई वहाँ पे आ सके, जैसे कि उन सबकी लाइफ बच जाए। किससे? सुनामी से, राइट। हामागुची paid no attention on his plan, was successful and had saved the villagers. The influential outsider living in a farmhouse virtually disconnected from the people is now the god that lives in a great honor among them all. Okay, here यहाँ पे क्या कहा गया है? उन्होंने जो है अपनी फील्ड को नहीं देखा, अपनी मेहनत को नहीं देखा, उन्होंने किसे देखा? 30,000 पीपल की लाइफ को देखा, और बिना सोचे समझे उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने अपने ही खेत को आग लगा दी, है ना। किस लिए आग लगा दी? अपने ही खेत को सेक्रीफाइस कर दिया इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ हुम? लाइफ ऑफ 30,000 पीपल। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है सेक्रीफाइस, कि हामागुची का कितना बड़ा सेक्रीफाइस हुआ। ओके, इससे क्या पता चलता है? सेक्रीफाइस पता चलता है, सेल्फलेस लव पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फलेस लव। ये क्या है? ये सब इसके पिलर हैं। ओके, ये सब इसके थीम हैं। सेल्फलेस लव पता चलता है। एंड एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई वुड लाइक टू do in different pencil, okay, that is what? उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है उस टाइम पे? उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेरिबल नहीं है कि अरे यार सुनामी आ रही है। उन्होंने बहुत ही शांत मन से अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ एक आइडिया लगाया और उन 30,000 लोगों की जान बचा दी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहाँ पे मतलब है कि अब जैसे सुनामी आ रही है, सपोज यहाँ पे सुनामी आ रही है, हम अपनी ही कंडीशन ले लेते हैं, तो हम लोग डर जाएंगे। डर की वजह से कुछ समझेंगे नहीं, कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं। ऑब्वियसली जब डरे हुए हैं पहले से ही, तो कुछ दिमाग में आएगा ही नहीं। तो उन्होंने अपने मन को पहले शांत किया कि सुनामी आ रही है, तो पहले अपने मन को शांत किया और फिर कोई युक्ति या मतलब कोई प्लान बनाया। ओके, तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी इस चीज़ से पता चलता है कि उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उस टाइम पे कितना ज़्यादा रैपिड है, कितना तेज है, राइट। तो ये तो हो गई एक शॉर्ट समरी। ओके, यहाँ से देखते हैं हम हामागुची के बारे में। ओके, सो लेट्स सी अबाउट दिस स्टोरी। सो फ्रॉम लॉन्ग टाइम द सोर्स ऑफ जापान हैव बीन स्वेप्ट बाय इनॉर्मस टाइडल वेव्स। ओके, कई सालों से हम सबको पता है कि जापान में जो कंडीशन है वो किसकी रहती है? सुनामीज की, अर्थक्वेक्स की, ओके, हरक्यूलेंस की, टोर्नेडो की, ओके, बहुत सारे नेचुरल लाइक डिजास्टर्स की, राइट। तो बहुत ही लंबे समय से जो जापान है वो इन चीज़ों से जूझ रहा है। किस किस चीज़ों से? इनॉर्मस टाइडल वेव्स का यहाँ पे मतलब है बहुत ही बड़ी विशाल टाइडल वेव्स, मतलब समुद्र की जो वेव्स होती हैं, समुद्र की जो ये वेव्स होती हैं। ओके, अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज इन द सी, इन सब चीज़ों से जो जापान वो कभी भी बचा नहीं है, हम सबको पता है ना। सच टाइडल वेव्स आर कॉल्ड एज सुनामी। ऐसी टाइडल वेव्स को हम क्या एक नाम दे दिया? ऐसी टाइडल वेव्स को क्या कहा है हमने? सुनामी। ऐसी टाइडल वेव्स को हमने एक नाम दे दिया है सुनामी करके। ओके, वाई द जापानीज, किनके थ्रू? जापानीज के थ्रू। जो ये बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं सी से, ओके, जो बहुत ही विशाल वेव्स होती हैं, ओके, जापानीज लोगों ने उसे नाम दे दिया है जिसका नाम है सुनामी। ओके, सुनामी एक जापानीज वर्ड है। ओके, द ऑथर इज नरेटिंग सच अ सुनामी occurred on the evening of 17 June 1896। ये बात कब की है? ये सुनामी आई थी 18 जून। कब आई थी? 17 जून 1896। कब आई थी ये? 17 जून 1896 में आई थी, एट द टाइम ऑफ इवनिंग। ओके, इवनिंग टाइम। इट वॉज 200 माइल्स लॉन्ग। कितनी बड़ी थी ये सुनामी की वेव? 200 माइल्स लॉन्ग। समझ सकते हैं कितना बड़ा? एक बहुत ही एडल्ट पीपल ट्री के बराबर। एडल्ट पीपल ट्री देखा है? बहुत ही बड़ा एडल्ट पीपल ट्री होता है, उसके बराबर, उससे भी बड़ा आई थी। ओके, destroying nearly 30,000 human lives
कितनी लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी वो वेव? 30,000 ह्यूमंस की, पर वो नहीं कर पाई क्योंकि द ग्रेट पर्सन हामागुची गोहाई, ही सेव्ड these all 30,000 pupils. Hamaguchi and his village was the victim of that tsunami. Okay, the Hamaguchi itself and villagers were the victim of that tsunami. They are going to affect by this tsunami. Okay, victim means they are going to affect by the tsunami. At the time of the occurrence, Hamaguchi was an old man and the head of the village, that is Murasao. ओके, मोरासाओ, ये एक जापानीज वर्ड है मोरासाओ, जिसका मतलब होता है द हेडमैन ऑफ द विलेज। जैसे कि हमारे विलेजेस में कौन होते हैं? पंचायती राज सिस्टम में हम कौन देखते हैं? सरपंच, राइट? कौन देखते हैं हम? सरपंच। जो सरपंच होते हैं विलेजेस में वो कौन होते हैं? हेडमैन होते हैं। ऐसे ही जापान के विलेज में कौन है हेडमैन? कौन है सरपंच? कौन है? हामागुची गोहाई। जापानीज वर्ड में जैसे क्या कहा जाता है? मोरासो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंसर्स में आपको इंक्लूड करना है। देखो ये जापानीज वर्ड जो आपको दिए गए हैं ना, ये आपको करना है आंसर्स में अपने इंक्लूड। दैट हु वाज हामागुची गोहाई? ही वाज द मोरासो विच मीन्स द हेडमैन ऑफ द विलेज। इस तरीके से आपने इन चीज़ों को, इन शब्द को इंक्लूड करना है अपने आंसर्स में। अंटिल यू विल नॉट यूज दोज वर्ड्स इन योर आंसर्स, there would be no marks. Okay, if you want to fetch good marks, you have to add these words. ये Japanese word I know थोड़ी से टफ है, मोरासाओ, ओजी-सान, चोजा, these are the words. ये words हैं. Okay, आप अभी आगे देखेंगे like the one is just मोरासाओ, एक होता है ओजी-सान, ओजी-सान का मतलब होता है grandfather, and एक होता है चोजा, चोजा का मतलब होता है grandson. Okay, तो ये कुछ जापानीज वर्ड हैं जो आपको स्टोरी में ऐड करने, अपने आंसर राइटिंग में ऐड करने, इफ यू वांट टू फेच रियली गुड मार्क्स। सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ओके, सो जो ये थे कौन? हामागुची गोहाई, ही वॉज द हेडमैन ऑफ द विलेज, ही वॉज रिफर्ड एज मोरासाओ। ओके, पीपल यूजली कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर, ओजी-सान। आई हैव टोल्ड यू ना कि पीपल उन्हें क्या कहते थे? ग्रैंडफादर, दादाजी, दादाजी करके बोलते थे, पर दादाजी नहीं बोलते थे, उन्हें कहते थे ओजी-सान। अनदर अ जापानीज वर्ड। जितने भी जापानीज वर्ड हैं उसे मैं येलो हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ओजी-सान का मतलब होता है ग्रैंडफादर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओजी-सान? ग्रैंडफादर। तो जितने भी लोग थे वहां जापान में वो सब उन्हें क्या कहते थे? ओजी-सान कहते थे। ओजी-सान है ना, जिसका मतलब होता है ग्रैंडफादर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे, साथ ही साथ बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। खुद ही सोचो ना, उन्होंने कितना बड़ा सेक्रीफिकेशन किया, अपने सेक्रीफाइस की है अपनी क्रॉप्स को, है ना। ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द कम्युनिटी एंड हेंस ऑफिशियली कॉल्ड द चोजा। ओके, क्या कहते थे उन्हें? चोजा। चोजा का मतलब ग्रैंडसन नहीं होता है, सॉरी, चोजा का मतलब होता है द रिचेस्ट पर्सन। ओके, सॉरी, चोजास का मतलब होता है रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज, जो सबसे ज़्यादा अमीर होता है। तो वो सबसे अमीर थे, क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी खेती थी। बट नाउ ही वॉज नो मोर rich since he has worked all his field, but still he was the richest person among all the person because he is having that guts. He has having that guts that he has fought from the tsunami, from the natural calamity as well. Okay, so उन्हें क्या कहते थे प्यार से सर? चोजा। चोजा का मतलब होता है जो सबसे अमीर व्यक्ति होता है पूरे गांव या शहर में। ओके, इन जापानीज वी यूज्ड टू सेट। सो हिज हाउस वाज लोकेटेड ऑन द हाईलैंड ऑन द कोस्ट एंड द विलेज। कहाँ पे था उनका घर? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई है, कोस्टल एरियाज में था। सुनामी मतलब जो ये सी है उसके सी सोर्स के तरफ था। एंड द विलेज वाज लोकेटेड ऑन द शोर, so he can see the villagers, he can see the, just wait, so he can see the village from the house, क्योंकि उनका जो घर था वो हिल एरिया पे था, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। हिल एरिया पे था, पहाड़ी इलाके पे था, तो वो अपने पूरे गांव को देख सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनका एल्टीट्यूड पे घर था तो वो सबको देख सकते थे वो। और जो वो लोग थे ना, जिन्हें अभी जो मैंने 30,000 पीपल बताए हैं, वो रहते थे सी सोर्स की तरफ। कहाँ रहते थे? समुद्र के किनारे की तरफ रहते थे। ठीक है, तो ओजी जो ये है, सो
One evening, his family members went to the village for a festival and was not feeling well, so he stayed back with his 10-year-old grandson. क्या हुआ? ऑब्वियसली जापान में मतलब फेस्टिवल था, एक फेस्टिवल का सीजन था, तो सब लोग जो है वो फेस्टिवल सीजन पे गए थे. ओके, पर जो ओजी सान है, ओजी सान मतलब जो ग्रैंडफादर हैं, जो ये हैं हामागुची गोहाई, ओके, ये रुक गए थे. इनकी तबीयत खराब हुई थी, इसलिए ये घर लौट आए थे विथ हिज 10-year-old लैड, विच इज विद हिज 10 years old grandson. ओके, 10 years old grandson के साथ ये मतलब अपने घर पर लौट आए थे, जिसका नेम क्या था? टाडा. ओके, इनके ग्रैंडसन का नेम है टाडा. ठीक है, जो हामागुची गोहाई हैं, इनके ग्रैंडसन का नेम है टाडा. ओके, who he was looking at the village from his balcony and suddenly experienced an earthquake, but it was normal for them, right? Okay, since they were living in Japan, और जापान में ये सब नॉर्मल होता है, हम सबको पता है. ओके, तो एक दिन वो बालकनी में खड़े थे. ओके, कौन? टाडा जो है वो बालकनी में खड़ा था और उसने एक्सपीरियंस किया अर्थक्वेक, द शेकिंग ऑफ द प्लेट्स ऑफ द अर्थ. उसने एकदम फील किया कि अर्थक्वेक आया है, पर वो उसके लिए बहुत नॉर्मल था. क्यों नॉर्मल था? क्योंकि वो जापान जैसे मतलब देश में रह रहे हैं. जापान में हम सबको पता है कि इट इज़ वेरी कॉमन, बहुत ही नॉर्मल है अर्थक्वेक, सुनामी, इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स को आना. ओके, तो उनका कोई उस चीज़ का, उस अर्थक्वेक का कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं किस पे? टाडा पर. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज but he felt it in a different manner. It was not usual for him. पर जो अर्थक्वेक था वो थोड़ा डिफरेंट था. इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, बहुत वियर्ड था वो अर्थक्वेक. ओके, वो पहले जो आते थे अर्थक्वेक, उनसे बहुत ही वियर्ड था, उनसे नॉर्मल नहीं था. तो वो थोड़ा सा टेंस्ड हो गया इस चीज़ के बारे में. ओके, वो थोड़ा सा परेशान हो गया. एंड ही थॉट दैट इट वॉज लॉन्ग एंड इन स्लो मोशन कम फ्रॉम अंडर वाटर फार अवे न सी. कि जो अर्थक्वेक था वो थोड़ा स्लो था और कहाँ से आ रहा था? द शोर्स, द करंट्स ऑफ द वाटर. जो करंट्स होते हैं, जो टाइडल वेव्स होती हैं सी की, वहाँ से आ रहा था. ओके, ही फेल्ट दैट समथिंग अनयूजुअल वॉज हैपनिंग. कुछ तो अजीब हो रहा है उन टाइडल वेव्स में, उन समुद्री लहरों में कुछ तो अजीब हो रहा है ना. When he saw at the sea, it was darkening and the water is moving. ओके, जब उसने सी की तरफ देखा तो जो एटमॉस्फेयर हो गया था वो डार्क हो गया था, जो कि किस चीज़ का साइन है? सुनामी आने से पहले का साइन है ना. हम सब ने मूवी में देखा होगा, है ना, कि सुनामी जब आती है तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा हो जाता है? डार्क हो जाता है ना. और जो वेव्स होती हैं सी की, वो एक बार आगे से पीछे लौटकर फिर बहुत देर तक, अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे तक नहीं आती हैं दोबारा लौट के, क्योंकि वो उस टाइम पे कलेक्ट हो रही होती हैं एक बड़ी सी टाइडल वेव बनाने के लिए. और जो चिड़िया की चहचहाहट होती है, जो क्रिपिंग्स होती हैं बर्ड्स की, वो भी रुक जाती है. ओके, सारी चिड़िया जो है वो चली जाती हैं उस जगह से उड़ के. ओके, तो ये सारे सिम्बल्स होते हैं किस चीज़ के? कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आने वाला है. ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि जो सी की तरफ डार्कनिंग हो रही है, ओके, डार्कनेस हो रही है सी की तरफ, और जो वाटर है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है. मैंने कहा था ना, जब भी सुनामी आती है तो ये बहुत ही एक बड़ा सिंबल होता है कि जो वाटर होता है, हम यूजुअली देखते हैं कि समुद्र में जो पानी होता है वो कैसे आता है? आगे से ऐसे जाके पीछे से आता है ना, आगे पीछे मूव करता है. पर वही पानी अगर जब आगे से पीछे चला जाए और बहुत देर तक आगे मुड़कर नहीं आए, मतलब वो जो पानी है, वो जो वेव्स हैं वो आगे से पीछे चली गई और फिर पीछे से आगे दोबारा लौट कर नहीं आ रही हैं, तो वो वहाँ पे कलेक्ट हो रही हैं. क्यों कलेक्ट हो रही हैं? वो वहाँ पे बना रही हैं बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल, इनॉर्मस वेव, जो कि क्या है? सुनामी. राइट. तो यही इनके साथ हुआ कि जो वेव्स हैं वो पीछे की तरफ लौट कर दोबारा आगे नहीं बढ़ी. ये सबसे बड़ा सिंबल होता है सुनामी का. द विलेजर्स ऑल्सो नोटिस दिस एंड दे रैन टुवर्ड्स द सी टू वॉच दिस अनयूजुअल सी. और विलेजर्स ने इस चीज़ को देखा, इस घटना को देखा, और वो कहाँ चले गए? वो चले गए सी की तरफ इस चीज़ को देखने की कि हो क्या रहा है. जो वेव्स हैं वो आ क्यों नहीं रही हैं? मतलब वेव्स तो आती जाती रहती हैं, पर जो ये वाली वेव्स है वो पीछे लौटकर दोबारा आगे आ क्यों नहीं रही है? उन लोगों ने नोटिस किया इस चीज़ को. ओके,
Okay, Hamaguchi had never experienced such things before, and he sensed a tsunami to take place soon. Obviously, Hamaguchi क्योंकि वो सबसे old person थे, he is having a lot of experience, right? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी कि जो टाइडल वेव्स हैं, जो सी की वेव्स हैं, वो एक बार पीछे लौट कर दोबारा आगे नहीं आए। और तभी से वो समझ गए, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थे और वो समझ गए कि नहीं, ये सिंबल किस चीज़ का है, सुनामी का है, मतलब सुनामी आने वाली है। इससे पहले कि सुनामी आए मुझे कुछ करना होगा। ओके, सुनामी आने वाली है। अभी कहाँ है? हाँ, जो हामागुची हैं वो विलेजर्स के पास थोड़ी हैं, वो विलेजर्स के पास नहीं है। वो कहाँ पे? अपने टेम्पल पे हैं, अपने हिल एरिया पे हैं। विलेजर्स तो वहाँ पे गए, कहाँ गए? शी शोर पे। और हामागुची कहाँ पे? वो अलग है, टेम्पल एरिया पे है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज दैट हामागुची भी वहीं पे प्रेजेंट है, नो। ओके, बट ही हैड नो टाइम टू सेंड द मैसेज टू द विलेजर्स। ऑब्वियसली सुनामी आने वाली है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो किसी कोई मैसेज भेजें। ओके, वहाँ पे कि सुनामी आने वाली है, सब लोग इधर आ जाओ। उनके पास इतना टाइम नहीं था। इतनी देर में सुनामी उन्हें उस 30,000 पर्सन को डुबाकर ड्वेल करके ले जाती, ढकेल कर ले जाती। ओके, ही वॉज नॉट हैविंग अ टाइम ऑफ अ सिंगल सेकेंड इवन। ओके, generally the villagers are informed or warned by the big bell in the temple, but Hamaguchi didn't have time to inform to the priest. जनरली कोई भी ऐसी चीज़ होती थी या हामागुची को कोई बात करनी होती थी या कोई भी मीटिंग रखनी होती थी, लोगों के सामने कोई भी अपना पक्ष रखना होता था। ओके, सपोज जैसे कि अपने घर पे ही देखो, जो सबसे बड़े होते हैं अपने घर के मेंबर, वो सब लोगों को बुलाते हैं एक कोई भी डिसीजन लेने के लिए, है ना। ऐसे ही हामागुची क्योंकि सबसे बड़े थे पूरे विलेज में, तो वो क्या करते थे, जब भी उन्हें कोई बात करनी होती थी, वो टेम्पल जाते थे। उनके पास में जैसे कि मैंने बताया था टेम्पल है। ओके, और वहीं से वो रिंग करते थे, किसी बेल को, घंटी को बजाने लगते थे। और उस घंटी की आवाज़ सुनकर जो लोग हैं पूरे विलेज के, वो सब आ जाते थे कि हाँ, हामागुची गोहाई हमें बुला रहे हैं, कोई बात करनी है, चलो चलते हैं। पर इतना टाइम अभी नहीं था, सुनामी किसी भी वक्त आ सकती थी। इतना टाइम उन लोगों के हामागुची गोहाई के पास नहीं था, और इसीलिए उन्होंने क्या कहा, उनके पास कोई और तरीका नहीं था। ओके, उनके पास तो और कोई तरीका नहीं था। ओके, इतना टाइम उनके पास नहीं था कि वो प्रीस्ट को इन्फॉर्म करें कि घंटी बजा दो, मुझे उन लोगों को बुलाना है। इतनी देर में सुनामी जो है वो आके उन सबको बहा के ले भी जाती। सुनामी बिल्कुल आने ही वाली है, राइट। He called his grandson Tada to bring a burning torch, and they led to the 100 of the rice stacks in his field. क्या हुआ यहाँ पे? उन्होंने अपने मतलब ग्रैंडसन को बुलाया, टाडा उनके ग्रैंडसन का नाम है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। ओके, टाडा को बुलाया और क्या किया उन्होंने उससे कहा, टाडा से कहा कि एक बर्निंग टॉर्च लेकर आओ। बर्निंग टॉर्च क्या, उस टाइम उनके पास टॉर्च थी नहीं। बर्निंग टॉर्च का मतलब है मिसाल, जो मिसाल होती है। ओके, जो मिसाल होती है, मसाल होती है, जो है ना, जो मसाल होती है, उससे लेके जाओ। ओके, हमें लोगों को इन्फॉर्म करना है। ओके, तो क्या कहते हैं ओजीशान मतलब ग्रैंडफादर क्या कहते हैं टाडा से कि टाडा जाओ जल्दी और एक बर्निंग टॉर्च का मतलब एक मसाल लेकर आओ। मसाल जो होती नहीं है, पहले के लोग मसाल चलाते थे, उस टाइम पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी कि बर्निंग टॉर्च और कुछ ऐसा। ठीक है, बर्निंग टॉर्च हेयर रिफर्स टू मसाल। ओके, जाओ मसाल लेकर आओ, टाडा जाओ और जल्दी से मसाल लेकर आओ। ओके, एंड they led to the hundreds of rice stacks in his field। और उन्होंने क्या किया, उस बर्निंग मसाल से, जो वो जलती हुई मसाल से अपने हजारों खेतों के धान को, जो राइस है, उनको जला दिया। क्यों जलाया? मैंने पहले ही बताया, जस्ट अबाउट द फैक्ट कि उन्हें इन्फॉर्म करना था 30,000 लोग, 30,000 पर्सन्स को, 30,000 पर्सन को, विलेजर्स को, उन्हें जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट इस इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो मेरी जलती हुई फील्ड को देखकर जल्दी से भाग कर आएंगे मेरी फील्ड को बचाने के लिए। ये तो पक्का है ना। तो उन्होंने इसीलिए इस फील्ड में आग लगाई थी। ओके, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? फील्ड पे आग किसने लगाई है? ओजीशान ने, मतलब
दिस गुहाई, हामागुशी गुहाई नहीं लगाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी फील्ड को जलता हुआ देखकर सब लोग बहुत जल्दी से आए, ओके, भाग कर आए मेरी फील्ड को बचाने के लिए, और मैं उन्हें उन सबको इस सुनामी के कहर से बचा लूँ। यही उनका आइडिया था, यही उनकी ट्रिक थी, है ना। उन्होंने अपने राइस टैक्स को नहीं देखा, अपने चावल के धान की खेतों को नहीं देखा, हमने राइस फील्ड्स को नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा? 30,000 ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को देखा। जस्ट उन्हें क्या दिखाई दे रहा था? 30,000 ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ दिखाई दे रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ that rice was the product of his field and he had invested a lot in it and had to be transported to the market very soon. उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत सारा इसके लिए मतलब उन्होंने प्रोडक्ट लगाए थे इस चीज़ के लिए, राइस के लिए, ओके। और बहुत ही जल्द वो राइस को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी करने वाले थे, पर उन्हें क्या पता था कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि मुझे 30,000 लोगों को बचाने के लिए अपने राइस फील्ड को जलाना पड़ जाएगा। Okay, Hamaguchi lit all the rice stack with the torch and there was a huge fire which could be seen by the priest. Okay, Hamaguchi ने बिना देर किए जल्दी से अपने पूरे के पूरे खेत को आग लगा दी और इतनी ब्लेज फायर, ब्लेज मतलब बहुत ही बड़ी, बहुत ही धमाकेदार फायर जो थी वो उठी। ओके, बहुत ही बड़ी सी फायर उठी जो कि टेम्पल तक दिखाई दे रही थी, टेम्पल के प्रीस्ट तक को दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी फायर थी वो, ठीक है। His grandson Tada was unable to understand this. Soon the priest ran. और उसका जो ग्रैंडसन है हामागुची का, वो समझ नहीं पा रहा था कि कर क्या रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर। उन्होंने अपनी ही फील्ड को आग लगा दी, है ना, अपनी ही फील्ड को उन्होंने आग लगा दी। वो बिल्कुल ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वो कर क्या रहे हैं। वो कहता भी है कि What are you doing? Oji-san, what are you doing? Oji-san, why are you doing this? इस तरीके के वर्ड्स वो बोलता भी है, ओके। तो and soon the priest rang the big bell of the temple and the villagers moved back and saw the fire and immediately hurried towards it. Okay, और जो प्रीस्ट है जिसने फायर्स को देखा था उसने जल्दी से बैल बजाई जिससे कि लोग जो है वो हामागुची के पास आए और उसकी मदद करें, ओके। और तभी बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दी से भागकर दौड़ते हुए आते हैं हामागुची के खेत की तरफ, ओके। विद इन शॉर्ट टाइम मोस्ट ऑफ द विलेजर्स रीच्ड बाय द स्पॉट, ओके। बहुत ही कम समय में बहुत सारे विलेजर्स जो थे, ज़्यादातर विलेजर्स वो एकदम पहुंच गए उस जगह पे। कहाँ पे? टुवर्ड्स द हामागुचीज फील्ड, ओके। हिज ग्रैंडसन was crying and told the villagers that his grandfather had gone mad, है ना। क्या कहा था मैंने कि जो टाडा है वो रोता है, टाडा जो है वो रोता है और कहता है कि जो उसके ग्रैंडफादर है वो पागल हुए हैं, उन्होंने अपने ही खेत को आग लगा दी है। ही हैज़ गॉन मैड, वो पागल हुए हैं। ही हिमसेल्फ सेट फायर टू ऑल राइस स्टैक्स, उन्होंने अपने ही खेत को आग लगा दी, राइट। हामागुची अग्रीड एंड आस्क्ड वेदर ऑल द विलेजर्स हैड कम, और हामागुची क्या कहते हैं कि क्या सारे के सारे विलेजर्स हैं यहाँ पे, क्या सारे विलेजर्स 30,000 विलेजर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, क्या सभी आ चुके हैं? सुनो क्या कह रहे हैं वो, क्या सभी आ चुके हैं यहाँ पर, ओके। क्या सारे के सारे विलेजर्स हैं यहाँ पर? द विलेजर्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंटेंशन फॉर हिज एक्शन, विलेजर्स समझ नहीं पाते कि उनका क्या वजह है, क्या करना चाह रहे हैं वो। लाइक हामागुची क्या करना चाह रहे हैं? पहले तो उन्होंने खुद ही अपने फायर लगा दी अपनी खेत को, और फिर हम सबसे कह रहे हैं कि सब विलेजर्स यहाँ पे हैं, आखिर करना क्या चाह रहे हैं? व्हाट इज हिज इंटेंशन, उनका इंटेंशन क्या है? देन ही पॉइंटेड देम टुवर्ड्स द सी फ्रॉम वेयर अ ह्यूज सुनामी वाज अप्रोचिंग। ओ, तब भी क्या कहते हैं हामागुची के, आप लोग मुझे पागल कह रहे हैं ना कि मैं पागल हो चुका हूँ, है ना, मेरा खुद का पोता मुझे पागल कह रहा है ना, पर देखो उस तरफ, देखो उस सी की तरफ, कितना विशाल रूप उसने, कितना भयावह रूप उसने ले लिया है, कितना खतरनाक रूप उसने ले लिया है। एक सुनामी बन गया है वो। अब क्या बन गया है? अब वो एक छोटी सी वेव नहीं है, अब वो एक सुनामी बन गया है। तभी जब सब लोग को वो पॉइंट करते हैं उस वेव, उस सी की तरफ, उधर क्या दिख रहा होता है कि एक बड़ी सी सुनामी की लहर आ रही है उस तरफ,
क्या हो रहा है, बड़ी सी सुनामी की लहर आ रही है जिसने उन 30,000 ह्यूमन बींग्स के घरों को, उनके खेतों को, उनके पेड़ों को सबको बर्बाद करके रख दिया है. Right, the whole village were destroyed within fraction of time, but all the villagers were safe as they were on the high ground. ठीक है, पूरा विलेज जो है वो बर्बाद हो गया था, पर विलेजर्स जो है वो सेफ थे क्योंकि वो सब कहाँ आ गए थे, हामागुशी की तरफ आ गए थे, एक एल्टीट्यूड पे आ गए थे, एक हाई एल्टीट्यूड पे आ गए थे. और हम सबको पता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो है वो सुनामी जल्दी नहीं पहुंच पाती है, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वेवलेंथ कितनी भी हो सकती है सुनामी की. Okay, but still they were safe, they were secured just due to Hamaguchi go high. Okay, and they were on the high ground. Hamaguchi saved life of nearly 400 life. कितने 400 या 30,000 पीपल्स की उन्होंने लाइफ बचा दी थी इसी चीज के, सिर्फ अपने खेत का बलिदान देकर. The whole village were destroyed within fraction of time, but all the villagers were safe as they were on the high ground. Hamaguchi saved nearly 400 life, ये मैं बता चुका हूँ. But now he became poor as he set fire to his whole rice stacks. पर क्योंकि अब उसने अपने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया तो अब वो थोड़ी गरीब हो गए थे, उनके पास पैसे कमाने का कोई साधन नहीं रहा था क्योंकि अब उन्होंने 400 या 3,000 पर्सन्स की लाइफ बचाने के लिए अपने पूरे जितने भी जो सोर्स है उनकी इनकम का वो उन्होंने जला के खाक कर दिया था. देन ऑल्सो ही इन्विटेड his villagers to stay in his house. They got shifted to his house and the temple. In those days, the help were not received quickly, and it took several days for them to recover from the loss. और हामागुशी ने क्या कहा, जब तक आप लोग को कोई मतलब मदद नहीं मिल जाती है बाहर से, जब तक कोई सिक्योर टीम नहीं आ जाती है आप लोगों के पास, आप लोग टेम्पल में और मेरे घर पर रह सकते हैं. ओके, जब तक कि आपको कोई मदद नहीं मिल जाती है और जब तक कि आपका जो लॉस हुआ है वो फुलफिल नहीं हो जाता है, तब तक आप आधे लोग टेम्पल पे रहें, आधे लोग मेरे घर पर रहें. ठीक है. फ्रॉम द टाइम दे स्टार्टेड एडमायरिंग हामागुशी एज अ डिवाइन पर्सन. और इस चीज़ को देखकर जो पर्सन थे, जो विलेजर्स थे, वो उन्हें क्या कहने लगे, उन्हें एक डिवाइन, एक देवता कहने लगे, एक देवदूत कहने लगे, एक डिवाइन मैसेंजर कहने लगे कि एक देवता की तरह आए और हमें बचा लिया. और इसीलिए इस स्टोरी का नाम है आ लिविंग गॉड, है ना. और कोई रीज़न नहीं है इस नेम का रीज़न यही है, आ लिविंग गॉड. ओके, फ्रॉम द टाइम they started admiring Hamaguchi as a divine person. They declared him a god and thereafter called him Hamaguchi Demiogen, the living god. Demiogen is also a like Japanese word जिसका मतलब होता है देवता, जिसका मतलब होता है person who act like a god, who is a superior person, who is an equivalent as an almighty, भगवान के तुल्य. ओके, तो एक जापानीज वर्ड है डेमियोजन जिसका मतलब है अ डिवाइन पर्सन, अ गॉड. ओके, तो हामागुची को सब प्रेज करने लगते हैं. ओके, द लिविंग गॉड, इवन टुडे हिज टेम्पल स्टैंड्स इन द विलेज एंड द फार्मर्स प्रे टू हिज स्पिरिट फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. आज भी जो हामागुची गुहाएं हैं उनका टेम्पल बनाया है जापान में, असलियत की कहानी है. उनका टेम्पल आज भी प्रेजेंट है जापान में और जो लोग हैं वो आज भी उनकी पूजा करते हैं और उनसे स्ट्रेंथ, पावर, करेज ये चीज़ मांगते हैं. समझ आ रही बात. नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ हामागुची इज एन अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, selfless action and presence of mind. It teaches us that we can save ourselves from calamities through our intelligent actions. Okay? Yep. तो जो हामागुची की स्टोरी है ये किस चीज़ के ऊपर है, सेक्रीफाइस के ऊपर है, जैसे कि मैंने बताया था. सेक्रीफाइस के ऊपर है, सेल्फलेस एक्शन के ऊपर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर है, जो कि मैंने एलिमेंट्स सारे बताए हैं. ओके, ये हमें बताता है कि कैसे एक बुद्धिमानी से हम मतलब नेचुरल डिजास्टर से बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं. एंड हियर द स्टोरी एंड्स. आई होप यू लव इट. Okay, and if you love it, don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon, and that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye guys.